Good afternoon, all of you. So let's start the class. And now we are going to start refraction. Okay. ध्यान से सुनो. What is the new topic? That is refraction. Till now we have finished a reflection part. Okay. So first of all, what is this refraction? Yes, can anyone tell me what is the refraction? In simple language, can I say like this? That is phenomena of bending of light. What is the definition? Phenomena of bending of light. Yes. Good afternoon. Yes. The phenomena of bending of light is what your refraction. And now what is the rarer medium and what is the denser medium? Okay. What is rarer medium? See here. Rarer medium. Can I write like this? The velocity of light is more. Velocity of light is more. Right? And another one is denser medium. Yes. So this is what velocity, or in this medium, velocity of light is less. Velocity of light is less. Yes, right. So these two things we know. The medium, how we will define the medium in which velocity of light is more is called rarer medium, and the medium in which velocity of light is less, that is what? Denser medium. Okay, understood. Very easy. Next one. So next is, what are the laws of refraction? What are the laws of refraction? But before going forward, what is the refractive index? What is the refractive index? Okay. So see here. Next one is refractive index. Refractive index. In this whole chapter, either we will denote this either with mu or sometimes with n. Denoted by mu or sometimes with n. Yaad rakho. And what is the definition of this refractive index? Can I say like this? It is the ratio. It is the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium. Velocity of light in medium. That is, this mu is equal to C by P. Even you can denote it with N also. So this is what your refractive index. Absolute refractive index and their problems we will see after some time. Just wait for that. Okay. Okay. This is what your refractive index is. Next are, what are the laws of refraction? What are the laws of refraction?
laws of refraction. सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से. तो see here, I am drawing one diagram this side, and I am denoting one medium with blue color, right, and another medium with, let it be black only, okay, so that either it will be what you can say, medium 1 and 2, whatever the rarer or denser, we are not bothering about that for the time being, okay. So let it be like this. Yes. And one more, shall I take another color? Okay. So let's take it as a white. Okay. So that we can easily differentiate between these two mediums. One is white, one is blue. Okay. Now, ये जो white वाला है, वो है अपना medium 1. तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, this is medium 1. एंड ये जो ब्लू वाला है वो है मीडियम 2. अब मीडियम 1, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आई एम राइटिंग इट एज n1, एंड ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2. ओके, गॉट इट माय पॉइंट? Because as I already told you, either we can denote it with n or mu. Yes, this is first page only, just started, don't worry. Yes, now n1 and this is n2, medium 1 and medium 2. Now I am going to incident light ray like this. Okay, wait, I will take black color so that it will be more visible for you. Okay, you can see this is a light ray, and now this light ray is incident on this interface. So this light ray is bending away from the normal like this, in this case particularly, and this is what the normal is. Okay, right. Now this angle is what? Angle I, and this is angle R, angle of refraction. Okay, incidence angle, angle of refraction, we can say, or angle of incidence and angle of refraction. So what are the laws of refraction? पहला वाला, फर्स्ट लॉ, ये वाला देखो इधर, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, reflected ray, and normal all lie in same plane at point of incidence. ओके, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है ना, ये वाला, तो यहाँ पे ये सारे एक प्लेन में है. ओके, उसके बाद जो दूसरा लॉ है वो है नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज रॉन्ग, ये नहीं है रिफ्रैक्शन में. तो दूसरा लॉ है अपना, ये जो रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ऑलवेज कांस्टेंट आता है. ओके, ये है अपना दूसरा लॉ. यस, एनी डाउट? तो यहाँ पे देखो, ये जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनका जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है. यस श्रीवल्ली, राइट.
लेकिन यहाँ पे एंगल आई एंड आर कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं. ओके, इट इज नॉट पॉसिबल. अंडरस्टूड? क्लियर है? ओके. एंड ये जो है, अब नेक्स्ट पेज पे देखो. As I said, there are two mediums है ना, which we have taken already. तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाएंगे. और ये है अपना नीचे वाला मीडियम, दैट इज व्हाइट वन, you can see. And here this light ray is incident. Two point రాశారు కదా, అది చెప్పిన. Means what ray? Do you have doubt? చూపానా? ఓకే ఓకే, చూపానా. ये చెప్పినా क्या लिखा है रे, मुझे समझ नहीं आया. చూపానా बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? చెప్పినానా చూపానా ఏంట్రా? वो दिखाना है तो बोलना है, बोलो. दिखाना है ये. छुपिए ना, चेपिए ना, क्या करना है बोलो. नो सर नथिंग. अरे ठीक से बोल रहे. दिखाना है आपको या क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आया. रिफ्रैक्टेड रे सर, ओके, तो उसका क्या? अरे पहले इसका चेपिना मीन्स आई टोल्ड. ओहो, ओके ओके, नो डाउट ना. ओके ओके, मुझे लगा कुछ डाउट है. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. आई रोट रिफ्लेक्टेड. ओके ओके, 1 मिनट, लेट मी चेक. हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, यहाँ पे ठीक है, मैं चेंज करता हूँ, रुको. यस, यहाँ पे राइट राइट. हाँ, यहाँ पे चेंज करेंगे. ये है रिफ्रैक्टेड. यस, गुड. ये चेंज कर दो. हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब ठीक है. ओके ओके. हाँ, और कोई डाउट? अब ठीक है. हाँ, ओके. राइट. चलो, अब देखो, ये जो रे है पहला वाला इंसिडेंट रे. ओके. अब इसके बाद मैं लेता हूं ये वाला है अपना रिफ्रैक्टेड रे. ओके, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड ये वाला है नॉर्मल. ठीक है. नाउ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके. अब इसके बाद ये है अपना नॉर्मल n, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2. So for this, as sin I by sin R is equal to constant, it means what? Always for two mediums, एक बात याद रखो, जब भी दो मीडियम रहते हैं, this is Snell's law. What is Snell's law? Here, refractive index into sine of angle of incidence is equal to refractive index of second medium into sine of angle of refraction. n1 sine of angle of incidence is equal to n2 sine of angle of refraction. So that means sine I by sine R is equal to n2 by n1. Okay, this is what your Snell's law, and you can denote it like this also, n to 1.
ये जो है साइन आई बाय साइन आर, सेकंड जो हमने देखा है ना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको ही बोलते हैं हम क्या, स्नेल्स लॉ। ये इलॉबरेशन ऐसे है। अब देखो यस यस, कोई डाउट है तो डायरेक्ट बोलो। यस, एनी डाउट? यस सर, n to 1, ओके ओके राइट। अब देखो ये साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2/n1 विच इज इक्वल टू n to 1 हो गया अपना। ओके, नाउ दिस n2/n1 कैन आई राइट लाइक दिस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं नोट पॉइंट बोल दूं। ये प्रॉब्लम में आपको बहुत काम आता है, ये जो है ये आपको प्रॉब्लम में बहुत काम आता है, ध्यान से सुनो। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू n2/n1। ओके, अब हमें एक पता है, एक फॉर्मूला, वो है n इज इक्वल टू c/v। इसका मतलब है n1 इज इक्वल टू हो जाएगा c/v1 और n2 जो है वो हो जाएगा c/v2। तो यहाँ पे देखो n2 क्या होगा, c/v2 और n1 क्या होगा, c/v1, है ना? यस, हाँ ये सम होगा राइट। तो अब देखो ये मैं c तो कैंसिल कर दूंगा, ये c और ये c कैंसिल, ये v1 गया ऊपर, तो ये हो जाएगा v1/v2। एक फॉर्मूला तो आ गया, ओके, है ना? राइट। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, अब मेरे पास और एक फॉर्मूला है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1/v2। ओके, और हमें एक फॉर्मूला मालूम है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर मैं v1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू लैम्डा 1, और v2 हो जाएगा एफ इंटू लैम्डा 2। तो अगर ये रखा है यहाँ पे, दैट इज एफ इंटू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय एफ इंटू लैम्डा 2, तो ये कैंसल होने के बाद क्या होगा देखो, ये हो जाएगा λ1/λ2। सही है ना? यस, ओके, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो ये दो नोट पॉइंट जो है ना, ये आप याद रखो अच्छे से। तो एक कॉमन अगर फॉर्मूला लिखना है, अगर एक कॉमन फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखो, एक बार इस बॉक्स में मैं लिख देता हूं। तो whenever you want you can use this। सर does Snell's law comes under law of refraction, आप बोल सकते हो वैसे, यस। नेक्स्ट क्या है, I1/I2, ये क्या है रे, I1/I2 क्या है? Sir, V2 by V1 no? यस यस, V2 by V1 no sir, not 0.1. एक बार ठीक से देखो रे, यहाँ पे ये 1/V2, ये 1/V1, ये ऊपर आ जाएगा ना रे V1 और ये V2 डाउन, सही है ना? ये एक बार ठीक से देखो, Sir, one explain this note point, sir. ये वाला, Yes, sir. ये देखो, ये जो साइन आई बाय साइन आर यहाँ पे आ गया, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2/n1 आ गया, यहां तक समझ में आया? Yes, sir, understood. एंड n2 इज इक्वल टू व्हाट, c/v2 ना, यहाँ पे मैंने दिखाया देखो, c/v2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, c/v1 होगा। V1. ये क्या होगा, ये मैं ऐसे लिख दूं, c/v2 इंटू v1/c लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes sir, I understood sir. तो इसके बाद अगर हम ये c कैंसिल करें तो v1/v2 राइट रहता V1 by है। V2. हाँ वही है ना फिर, राइट। Yes, sir, understood. ओके ओके ईशान, ओके, हाँ वो ये आई को लैम्डा बोल रहा है, ठीक है। ये सब कोई डाउट है अब इसमें, नहीं है ना? ओके No No doubt, sir. sir. राइट राइट, ये इरेज कर देता हूँ। ओके,
ठीक है, चलो एक मैं क्या लिख रहा था यहाँ पे, नोट पॉइंट है ना, एक बॉक्स लिख रहा था तो सारे नोट पॉइंट यहाँ पे, राइट राइट। तो यहाँ पे देखो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1 विच इज इक्वल टू n21, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो इसको। उसके बाद इसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो, कैसे, ये 1 इधर और ये 2 इधर, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको v1 बाय v2 चाहिए, ये भी आप लिख सकते हो। उसके बाद लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2, ये सही है क्या, चेक करो, सही है ना, एनी डाउट? No, sir. ओके। अब सर ये n21 और n12 क्या है, n21 और n12 क्या है, ये देखो एक बार। ये तो आपका हो गया नोट पॉइंट, इसको आप हैशटैग करो, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। आपको कौन सा भी फॉर्मूला आप इससे मतलब कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये जो n2 बाई n1 है, ये देखो यहाँ पे मैं एक एरो डाल के आपको नीचे एक लिख रहा हूँ लाइन, ध्यान से सुनो। ये जो n2 बाई n1 है, इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और यही है आपका n21, या तो फिर आप इसको n12 भी बोल सकते हो। ये n2 इधर, ये 1 इधर, ये इधर का 1 इधर लगा देना। तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम second medium with respect to first। with respect to first, है ना। ये नॉट ओनली n21, अगर आपको n1 बाई n2 भी आए तो भी उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं आप। लेकिन उसमें क्या करना है, अगर मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूं, ये हो गया, सबको समझ में आया। आई विल राइट ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, राइट, कोई डाउट है? यस सर, डन, ओके, राइट। ये देखो नेक्स्ट पेज पे, अगर ये n1 बाई n2 है, समझो, बिकॉज आई हैव रिटन हियर n2 बाई n1। if you want to write n1 by n2, this means what, n12, इसको कैसे लिखेंगे, n1 इधर, इधर का ये 2 इधर, ये वाला इधर जंप करता है, याद रखो। ये आदमी है ना, ये पैर नंबर 2, ये पैर नंबर 1। यही अगर आपको ऐसे झिकझैक करना है तो कैसे करेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना, ये ऐसे और ये ऐसे, है कि नहीं। कैसे कैसे डांस करते हैं ना कुछ लोग, ये वाला पैर इधर, ये वाला पैर इधर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बिकॉज सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर, थोड़ा सा मुझे इसका हेल्प। ये वाला पैर इधर ले लो, ये वाला पैर इधर ले लो, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 इधर, ये 2 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये याद रखो, खाली आपको कैसे जंप करना है, मतलब जस्ट नॉट फॉर कंफ्यूजन, whatever they are giving you should understand। okay, most probably they will give like this only। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई n21, यस, देखो n1 बाई n2 इज इक्वल टू 1 बाई n21। इसका मतलब क्या होता है, 1 बाई n2 बाई n1। फिर से हो गया ना वही, समझ में आया, क्लियर है, ओके, अंडरस्टूड। यस और नो बोलो।
एंड Yes, sir. देयरफॉर इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कैसे होता है, 1 मिनट में मैं बता देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दैट इज नथिंग बट n12 इज इक्वल टू 1 बाई n21। एक बार इधर तो देखो नीचे, यहाँ पे देखो ये मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। कहाँ पे? इसके नीचे बराबर, है ना? These are the two mediums, and now I am incidenting light ray like this, and suppose it is bending towards the normal. What you want, away or whatever, let us take away. And now suppose I placed one mirror here, one plane mirror I have placed, and this one is normal. ध्यान से सुनो, this is normal angle of incidence, this is angle of refraction, this is R, this is I, and यहाँ पे हमने लिया है mirror, this is what mirror is. So when it will reflect, because this is perpendicular, understand, this is what perpendicular. When we have incident perpendicular, what will happen? This ray will come back in the same direction and it will retrace its path, understand? And therefore अगर आप यहाँ पे देखो, for going, पहले जब रे जा रहा है, n1 sin of I is equal to n2 sin of R। उसी तरह अगर यहाँ पे आप देखो, ये समझो n1 है और ये n2 है, जब यहाँ से जाएगा तो क्या करेंगे? n2 sin of R is equal to n1 sin of I, है कि नहीं? तो अब देखो इससे क्या हो जाएगा, sin I by sin R is equal to n2 by n1, है ना? और यहाँ पे भी फिर से वही आ जाएगा, सही है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है, अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाओ या दूसरे मीडियम से फिर से वापस आ जाओ, बस वही होता है। लेकिन बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए, n1 by n2 is equal to 1 by n2 1, है ना? Same only you will get, yes, retraces, right? क्लियर है? तो बस ये याद रखो n1, एंड इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो है, इसके लिए मैं एक लाइन लिखूंगा, that is this is also relative refractive index only, relative refractive index, and इसे मैं लिखता हूं refractive index of first medium, RI लिख रहा हूं मैं, RI of first medium, पूरा लिख रहा हूं, first medium with respect to second, with respect to second medium। ओके, क्लियर है? देखो कुछ राइट है ना? अब इसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। डिटरमाइन, ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, determine the refractive index of glass with respect to water. Determine the refractive index of glass with respect to water, and therefore Ng is equal to 3/2 given है ये, और ये है Nw is given as 4/3। या तो आपको म्यू चाहिए तो म्यू ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैं म्यू लिख देता हूँ, इधर आप म्यू लिखो या तो n लिखो, चॉइस इज योर्स। म्यू जी इज इक्वल टू 3/2, और ये जो म्यू डब्ल्यू है
that is equal to 4/3. Now what he is asking? He is asking you refractive index of glass with respect to water. इसका मतलब क्या है? mu g w he is asking. That is what? Mu g by mu w. Yes. Yes. तो कितना आएगा आंसर बोलो? ये है 3/2. ये होगा 4/3. Yes. 1/8. 9/8. 1/8. दो आंसर है. क्या होगा? 1/8 तो नहीं होगा ना रे. कैसे होगा? ये 3 तो ऊपर चलेगा. यस 9/8. यस यस. हाँ. अब देखो ये 3 आपको ये नहीं आ रहा है. बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा है. 3/2 ले लो पहले इनटू इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करो. तो ये क्या होगा? 3/4. बहुत सारे वैसे ही कर रहे हैं. इधर एक लेता हूं मैं. a/b डिवाइडेड बाय c/d. राम राम इज इक्वल टू क्या होगा? a/b इंटू d/c. याद रखो, कभी भी भूलना नहीं है. सही लिखा है क्या मैंने? देखो मैंने लिखा है क्या सही? यस सही लिखा है क्या? कभी कभी ये बोर्ड पे नीचे कुछ बोलता हूँ ऊपर कुछ लिख जाता है. देखो चेक करो. सही है. ओके राइट. a/b/c/d a/b इंटू d/c. ओके वैसे यहाँ पे देखो ये जो हमने mu g w इज इक्वल टू mu g by mu w लिया है. mu g का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 1.5 था और वाटर का है 4/3. 4/3 मतलब 1.33. तो ये जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे. कितना आंसर आएगा? 9/8. दिस इज व्हाट? mu g w. What is this? Mu g w. That is what refractive index of glass with respect to water. Is that clear? Understood? Yes. Yes, sir. Okay. Right. नेक्स्ट पेज पे चलेंगे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखो और आप सॉल्व करो, ट्राई करो. These are the two mediums and its refractive index is mu1, its refractive index is mu2. तो मैं इसको डायरेक्ट ग्लास बोल देता हूं. दिस इज ग्लास and its refractive index is how much? 3/2. ये है वाटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3. ठीक है. अब कौन सा डेंसर मीडियम है और कौन सा रेयर मीडियम है बोलो? Which one is denser medium? Which one is Glass. denser medium? U1. Glass is a denser medium. Why? Because its refractive index is more. तो रे क्या होगा? अवे जाएगा, टूवर्ड्स जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? क्योंकि डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रहा है. When ray travels from denser to rarer, it bends away from the normal. याद रखो डायग्राम ड्रॉ करते समय भी. कुछ डाउट है इसमें? ये हो गया I, ये हो गया R. सही है ना? यस. और ये है अपना नॉर्मल N. अब जब एंगल I दिया हुआ है गिवन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है? I is equal to 30 degree, then find R. This you have to solve the question.
ओके एंड एक नोट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप तब तक सॉल्व करो। व्हेन लाइट रे travels from rarer medium to denser medium, it tends towards the normal and vice versa. ओके राइट, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये सॉल्व करो। आर आपको फाइंड आउट करना है। यू जस्ट सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, नो नीड टू ज्वाइन अगेन। Tomorrow we will join with another link which will not end in 40 minutes.